He expresses the narration of Swaraj, modern civilization, mechanization, etc. So, today, we, the student of Shamlal College Evening, would like to listen these words to trigger our mind. Before the Subharam of this program, I would like to welcome our respected principal, Dr. Ramesh Kumar sir. He has 30 years of experience. He has many national and international research papers. He is also a secretary of Gandhi Ashram, which is located in GTB Nagar. He is a political analyst, author, and Gandhian activist. Sir, your valuable presence will surely help us to accommodate a feeling of supergence and mentalism. Thank you, sir, for attending this program from your busy schedule. Now, I would like to welcome our respected teachers who are the strong pillar of this program. Without teachers, without your cooperation and support, sir and ma'am, this program is incomplete. Welcome, Okay, sir. Now thank you. it's now Thank it's you. time to welcome now it's time to welcome our seniors. Senior is a word. Whenever we listen, there comes the feeling of brotherhood, pride, and a sensation whose footstep we have to follow. Welcome you all. It is my pride to say we all have been working enthusiastically for this program to be successful. It is my pride to say now without any stop, I would like to take forward this program. अब मैं आप सबके सामने कुमारी प्रिंसी जो कि बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है, वो हम सबके सामने गांधी जी के कुछ दोहे को प्रस्तुत करेगी। गांधी जी के कुछ दोहे को प्रस्तुत करेगी। आजादी का फूक कर आम जनों में मंत्र, गांधी जी ने कर दिया भारत देश स्वतंत्र। साधन पावन ही रहे था गांधी का जोर, चाहे देरी से मिले हमें लक्ष्य का छोर। गांधी का जीवन रहा सच के साथ प्रयोग, जिससे लग पाया नहीं उन्हें रूढ़ का रोग। गांधी में कमियां रही, थे वे भी इंसान, सच्चाई के साथ से लेकिन बने महान। रोजगार उपलब्धि का चरखा रहा प्रतीक, थी गांधी जी की दृष्टि है भारत के हित ठीक। बात न्याय की प्राप्त हित, सत्याग्रह को ठीक, सत्य अहिंसा शांति के गांधी बने प्रतीक। जो जन जन में व्याप्त है बनकर एक विचार, उस गांधी को मौत भी कब कर सकती है मार। Thank you, Princey. Now, I would like to call our Dr. Ramesh Kumar sir to address some of his idea about Hind Swaraj. Sir. Thank you again. And thank you, pillars of this program, a long-standing program, a lasting program, with the cooperation of students and Gandhi-loving faculties. I can see here convener of Gandhi Study Circle, Dr. Amit Singh, and enthusiastic faculty of the History Department making history, Manish Karambar, and man organizing behind all this show, like a pillar, like an inspirer, like a motivator, is our IQSC coordinator, Kumar Prasad, another faculty member, Dr. D.N. Singh of the department, Pramod ji, and dear friends. Let me begin with a heartfelt congratulations to the department for carrying forward a everlasting program of the studies on any issues. Today, on 152nd birth anniversary of the father of the nation, as many of you just repeated, this is a very sacred occasion. Yes, I don't deny I am a Gandhian activist. I am busy since morning up to from 6:30. I own Gandhi programs. Just I am in Gandhi Ashram also. You mentioned in your introductory remarks. Friends, this is an occasion when the department has taken up a historical textbook written manually by Gandhi,
in his manuscript. And you'll be surprised to know the context and background for writing this book. First of all, let me tell you, you must read the book. It is too small, very small book, in a very simple language, a very lucid language. Actually, in a very crude language, you can easily understand. So, and fortunately, Dr. Manish Karambar shown you on the screen. Thank you, Manish. And I request Manish to please order 100 copy of Hind Swaraj from this Rajghat. Sir, definitely. And Amir Bhai, you please make these 100 copies subscribed by students, give them on just ₹10 as a token. And once you deposit money with me, I will send office man to collect. So I will facilitate this entire awareness agenda about Hindu Swaraj. This is a pocket edition. Friends, these 20 chapters are the map of India. He presented in a question answer form, like Gita. When whole Gita is narrated in the question answer form, and he the similarly the book is a book the same fashion mode. Question answer. Some internet problem, sir, network problem, because your voice is not clear sometimes. Network, I'm going out. Gandhi asked. Just wait for a second. Just wait for a second. महेश एक कुर्सी वहां रख दो, इधर बाहर ले आओ, जल्दी जाओ। रणवीर एक कुर्सी ले आओ बाहर, कुर्सी बाहर ले आओ वहां से, यहाँ रखो, जल्दी ले आओ। Just wait. Just wait. It's okay now? हाँ, यस सर, यहाँ से आवाज क्लियर है। क्लियर इसलिए मैं बाहर आ गया, अब बाहर से मैं बात करूंगा। ओके ओके, वो तो चालू कर, अब अभी बंद कर, बाद चालू करने से आवाज 5 मिनट, ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है अब एकदम सर। हाँ, आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हिंद स्वराज किताब है, let us know what is Hind and what is Swaraj. Hind is not India, nor Bharat. Hind is where people having different faith live together. This is Hind, where not only Hindus, but all people having different religious faiths, having different religious books, having different religious gods, having different religious history and heroes, they all live together. This is Hind Swaraj. Hind for Gandhi is a composite India, a co-religious India, a compact India, a united India, a heterogeneous India, not homogeneous India. This is called Hind. And Swaraj is again not independence. Swaraj means self-independence, self-dependent, dependent on self, individual, not only the territory of India, every individual. If every individual is free of exploitation, capable enough to stand on his own feet, fulfill his own needs, not begging, not allowing anybody to get exploited, then it is Swaraj. So self-rule means self-dependent, not depend on anybody.
no, not subjugated, politically, economically, socially, or gender-wise. This is concept of Swaraj, which Gandhi visualized for, designed for, and fought for. Gandhi wrote this book in 1909 while coming back from South Africa to India, from London to Johannesburg. He wrote this book, and our friend rightly said, he was a great critic of Western civilization, not in total, but acceptable part, unacceptable part. Divided in two parts. What is good in the best must be emulated, must be copied, must be believed in, must be implemented. Whatever bad there must be discarded and strongly discarded. उन्होंने कहा कि हमारी खिड़की में ताजी हवा आनी चाहिए, दरवाजे खोल दो, लेकिन जब कोई आंधी आए तो दरवाजे और खिड़की बंद कर दो। तो अगर हमारा सब कुछ उड़ने लगे, सब कुछ बिखरने लगे, तो हमें फिर अपना समेटना चाहिए। ये वो स्वराज कह रहे थे। बहुत सारी बातें की, एजुकेशन की बात की, जिस एजुकेशन की बात हम एनईपी में कर रहे हैं, हुनर की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, मातृभाषा की बात कर रहे हैं। गांधी जी ने कब तब कहा था, अगर देश की भाषा नहीं है तो देश गूंगा है। जो तालीम लोगों को कार्य की डिग्री दे दे और बेरोजगारों की पंक्ति में खड़ी कर दे, वो शिक्षा किस काम की? वो तो बोझिल है, बेरोजगारी मूलक है। हमें शिक्षा दे जो हुनर सिखाए, एक पढ़े और चार को अपने साथ पढ़ाने का मादा रखे, एक रोजगार लायक हो और चार को रोजगार देने की हिम्मत रखे। ये शिक्षा है जिसमें मोरल वैल्यू जो आज हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और वहीं रेप होता है। तो ये मोरल वैल्यूज खत्म होने की बात की है। अभी के नई एजुकेशन पॉलिसी इन चीजों की बात कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, बट काफी इसमें इनपुट दी गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ, फिर गांधी का भारत गांव था, गांधी का भारत इंडिया नहीं था। ये स्मार्ट शहर नहीं था गांधी का, रूरल इंडिया, जहाँ भारत की आत्मा रहती थी। 6-7 लाख गांव हैं। आज भी अगर गांव की गरीबी दूर हो जाए, डेवलपमेंट विलेज सेंट्रिक हो जाए, विलेज रिपब्लिक बन जाए, तो शायद लोग शहर की तरफ पलायन नहीं करें। और अगर हम भी अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल पर चलते रहे, शहरों का स्मार्ट सिटी बनाते रहे और गांव को डेजर्ट करते रहे, निगलेक्ट करते रहे, ओवरलुक करते रहे, इग्नोर करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा शहर एक गंदे गंदा शहर हो जाए। कितनी बिजली देंगे आप? कितने लोगों को मकान बनाएंगे आप? कितने डेवलपमेंट में प्लानिंग होगी आपकी? कौन सा अर्बन प्लानिंग होगी आपको? कितने नाले बनेंगे? कितने बिजली घर? तो आपको गांव का विकास करना होगा। गांधी के गरीब का विकास करना होगा। अगर आप गरीब का विकास नहीं करेंगे तो गरीब हिंसक होंगे, अराजकता फैलेगी। और जब आपके बगल में एक अमीर के पास अगर 100 गरीब बसे हुए हैं, अमीर को चैन से नहीं रहने देगा। आप सोचिए, इट विल टिपिकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो अगर शांति चाहिए तो सबका विकास चाहिए। अगर आपके घर गला से भरा, अनाज से भरा है, और बगल में 100 घरों में अनाज नहीं है, भूखे मर रहे हैं, तो आप जान लीजिए आपके कोठी में अनाज नहीं रहेगा, आप घर में शांति नहीं रहेगी। तो शांति के लिए सबका विकास जरूरी है, और सबका विकास कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। और अभी तक के 70 साल जो 75 साल के हमारे अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अब मनाए जा रहे हैं। देखिए अमृत कहाँ तक पहुंचा है, समानता कहाँ पहुंचा है, अनाज कहाँ पहुंचा है, राशन कहाँ तक गया है, दवा कहाँ तक पहुंची है, बत्ती कहाँ तक पहुंचा है, दवाइयाँ कहाँ तक पहुंची है, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ तक गया है। तो अगर वही हिंद स्वराज कहता है, स्वराज के लिए ये तमाम चीजें, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, दवाई हो, राशन हो, सब जरूरी है पहुंचना। ये पहुंचेगा तो विकास होगा। वरना देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, गांधी ने जो पोशाक अपनाई थी, जो धोती को लंगोट बना के पहना था, वो भारत के गरीबों की पहचान है, वो भूमिहीन मजदूरों की पहचान है, वो हमारे देश की
आधे कपड़े में चल, चाहे कोई इसको नंगा फकीर नहीं क्यों ना कह दे, भले कपड़ा आधा पहनता था, सोच कई लोगों से ज्यादा रखता था। तो कपड़े पहना जाए, वो पोशाक हमारी आदिवासी भाइयों की पोशाक है, हमारी गरीबों की पोशाक है, गांव की पहचान है, गरीब की पहचान है, किसान की पहचान है, मजदूर की पहचान है। तो भाई गांधी हमारे देश के गरीबों, तभी तो गांधी इतना बड़ा गांधी बने, महात्मा बने। और विश्व के, आज विश्व के गांधी से बड़ा कोई ग्लोबल आइकन नहीं है। गांधी नेशनल ग्लोबल आइकन है, और गांधी के रास्ते पे कई देश चल रहे हैं। हम नहीं चल रहे, हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं बच्चों में कहता हूँ, बच्चे वही किताब पढ़ें। किताब कागज में सागर है, छोटी सी किताब है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और बाकी आपके इतने विद्वान शिक्षक हैं, अमित भाई भी गांधी स्टडी सर्किल पे रोज बात करते हैं। उनके पास हमारी लाइब्रेरी में हिंद स्वराज की प्रतियां हैं, आप इश्यू कराएं और पढ़ें। प्रतियां कम पढ़े तो आप अपने शिक्षक को लिख दें, हमें प्रति मंगा दीजिए, वो मंगा दी जाएगी। और मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी गांधी के पंजाबी एक टीवी इंटरव्यू हो रहा था जिसमें कहा गया गांधी के बारे में लोग नहीं जानते हैं। हम गांधी को जानते नहीं, गांधी को गलत तरह से भी पढ़ाया जा रहा है, गांधी को गलत तरह से परोसा जा रहा है। दलित साहित्य अलग तरह से गांधी को पेश कर रहा है कि वो दलित के दुश्मन थे। हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमान के समर्थक तुष्टिकरण करते थे, मुसलमान कह रहे हैं वो तो कट्टर हिंदू थे। तो तरह तरह से गांधी के, जैसे हाथी के कहते कान है, ये सूंड है, ये दूसरे गांधी को तरह तरह से परोसा जा रहा है। गांधी के संपूर्ण विचार को समग्रता के साथ, सच्चाई के साथ और संपूर्णता के साथ तो गांधी पे, गांधी साहित्य को पढ़ने, पढ़ाने, बताने, प्रचार करने, बच्चों को समझाने की जरूरत है। वरना नई पीढ़ी एक एक आधा गांधी को जान पाएगा, चौथाई गांधी को जान पाएगा। संपूर्ण गांधी जाके जानने के लिए एक संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण शिक्षण सामग्री की जरूरत है। और गांधी के बारे में जानना नहीं है, गांधी को पहचानना है, गांधी के रास्ते पे चलना है। और अगर नहीं चलेंगे तो फिर हम विनाश को बढ़ेंगे। आइंस्टीन ने कहा था हमें दो चॉइस है, या तो एग्जिस्ट करें या एक्सटिंक्ट करें। गांधी को और मानना है तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और गांधी को नहीं मानना है तो फिर तो हम एक्सटिंक्शन के लिए तैयार है। चाहे पर्यावरण में प्राकृतिक आपदा हो, चाहे सामाजिक आपदा हो, ये आपदाएं होती रहेंगी। चाहे दलित के साथ अत्याचार होते रहेंगे, गांव में गरीब और अमीर पे नक्सल हिंसा होते रहेंगे, शहर में संघर्ष होता रहेगा। यानी एक अशांत भारत चाहते हैं तो गांधी को ना माने, एक शांत भारत चाहते हैं तो फिर एक शांत भारत के और सबके साथ विनिमय उपलब्धि हो, समग्र भारत में सबके साथ बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो। तो गांधी का सपना था, वही हिंद स्वराज था, वही हिंद स्वराज में दिया हुआ रोड मैप है। उस रोड मैप पे हम 75 साल में तो पहुंच नहीं पाए, शायद अगले 10-20 साल में अगर हम एजेंडा देंगे तो हम हिंद स्वराज की तरफ कुछ तो बढ़ लें। एक काम तो मनरेगा ने कर दिया, प्रधान जी ने उस पर काम किया है। ये काम सरकार ने मनरेगा किया जहाँ गरीब को कुछ तो राहत मिली। और बाकी सरकार की सोचना है और छात्रों को सोचना है, तो देश आपका है। आगे भारत आप देखेंगे, आगे नौकरी आप देखेंगे, शिक्षा आप लें, गांधी को आप जाने, गांधी को आप पहचाने, और हमारे साथी इसमें आपको सहयोग देंगे। मैं लगता है कि समय ज्यादा ले लिया, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक बार फिर से पूरी हिस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम को और तमाम जितने हमारे साथी जुड़े हैं, जो दिख रहे हैं और जो नहीं भी दिख रहे हैं, तो सबको एक बार मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने हमें मौका दिया गांधी पर चर्चा करने के लिए और गांधी को बारे में कुछ बात करने के लिए। धन्यवाद विभाग को, धन्यवाद साथियों को, और धन्यवाद बच्चों को। सर कुछ देर रुकिएगा, हम जानते हैं कि काफी बिजी हैं आप सर, कम से कम 10-15 मिनट सर आप सर। ठीक है। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now, I would like to call Dr. Kumar Prashant, sir, who is the convener of IQAC. Sir, your valuable presence and valuable thoughts on Hind Swaraj. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हमारे कोलिग और अमित जी, स्तुति मैडम, सभी को नमस्कार। आज के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, ये जो कार्यक्रम हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने और आईपीएससी के साथ किया है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं, खासकर स्टूडेंट
जो छात्र हैं हमारे वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि हम स्टूडेंट जो है वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं और हम उन्हीं के कारण एग्जिस्ट करते हैं, न कि वो मेरे कारण। जहाँ तक हिंद स्वराज की बात है, सर ने बहुत बातें कही और जैसे मनीष जी ने शुरू में बताया कि हिंद स्वराज छोटी सी पतली सी बुक है, लेकिन है इसमें बड़ी बड़ी बातें और ग्राह्य है। जो प्रशांत सर आप म्यूट हैं सर, प्रशांत सर म्यूट हैं। ओहो सॉरी। नहीं अभी बस 10 सेकंड पहले हुए हैं सर। ओ पहले तो आवाज आ रही थी ना। हाँ हाँ यस सर यस सर यस। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो हिंद स्वराज है जिसमें बातें कही गई है, गांधी ने लिखा है, जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया, फिर पहले भी बात मनीष जी बता रहे थे, बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि जो गांधी ने उस समय कहा था आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में सारी चीज़ें सार्थक ही हैं, और उसके क्रिटिक्स भी बहुत हैं। गांधी के क्रिटिक्स आप पढ़ सकते हैं, और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने गांधी के बारे में उनकी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखी है। तो जहाँ तक गांधी को समझने का, हम ये मानते हैं कि हमारे देश में गांधी के जो फिलॉसफी हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ख़ासकर जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण या जिस तरह का समय है, उसमें गांधी का रिलेवेंस और बढ़ गया है, उनकी यथार्थता और बढ़ते चली आ रही है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जैसे गांधी ने जो बहुत सारी बातें कही, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि और भी लोग हैं, मैं एक दो बातों को उठाना चाहता हूँ। खासकर जैसे इंस और मिन्स की बात उन्होंने कही कि साधन जो है वो पवित्र होना चाहिए। कई फिलोसफर जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं वो उनसे बिल्कुल अलग हैं। आपका लक्ष्य क्या है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका साध्य क्या है, आपका साधन क्या है। अगर आपका साधन पवित्र है तो साध्य पवित्र होगा, गोल आपका जो है वो पवित्र होगा। तो ये जो है वो कई चीज़ों में इतनी बड़ी बात है कि आज के टाइम में आप देखिए कि लोग ये तो कह रहे हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, लक्ष्य हमारा बहुत अच्छा है, लक्ष्य हमारा देश में है, लक्ष्य हमारे देश के लिए है, राष्ट्रवाद की बात है, लेकिन उसके लिए जो साधन या जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो तरीके होने चाहिए, क्या वो सही हैं? अगर वो सही नहीं होंगे तो हमारा लक्ष्य जो राष्ट्रवाद का है वो विफल हो जाएगा। जैसे गांधी ने कहा हिंद स्वराज के बारे में, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हिंद का मतलब क्या है। अगर इस चीज को समझा जाए तो बहुत ही उन्होंने विस्तृत बताया है। अगर इस, और उन्होंने सही बात कही कि जो हिंद है वो सभी को एक कंपोजिट कल्चर की बात करता है, सभी को साथ जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। और इसीलिए कई लोग गांधी को अपने अपने दृष्टिकोण से उसको देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर संपूर्णता से गांधी को समझा जाए तो उन्होंने हमेशा एक ऐसे मॉरल की बात की, एक ऐसी इथिक्स की बात की जो आज की समय की पूरे विश्व को भी जरूरत है और हमारे देश को तो है ही है। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि अगर गांधी के सिद्धांतों को, उनके फिलॉसफी को अगर समझ कर अपने जीवन में उतारें तो हम अपने देश को बहुत आगे, जैसे विश्व गुरु की बात हम करते हैं, वो विश्व गुरु बन सकते हैं। बस ये नहीं है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अलग हो जाइए, या जैसे उन्होंने टाइम और मशीन में कहा, मशीन जो है इंसान को ये बना देता है, उस है कोई बात है, लेकिन आज के युग में हम मशीन के बिना नहीं रह सकते, टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते, उसकी जरूरत है, सारी चीज़ों की जरूरत है, लेकिन हमें एक संपूर्णता से गांधी को समझने की जरूरत है। और बहुत सारी बातें, चाहे वो गांव को लेकर के कहा गया है, ओशनिक सर्किल की बात की गई है, बहुत सारी बातें गांधी, पतली बुक है लेकिन उसमें इतनी सारी बातें हैं कि उसके हर एक चैप्टर में 10-10 बुक लिखी जा सकती है, और लिखी भी गई है, बहुत सारी बुक लिखने वालों ने लिखा भी है। लेकिन जो गांधी के विचारों के आधार पे हमारे देश में बहुत सारे लोग गांधीवादी बन रहे हैं या गांधी को चलाने वाले लोग हैं, मेरी उनसे एक गुजारिश है या विनती है, खासकर उन लोगों से, क्योंकि यहाँ तो वैसे नहीं लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो गांधी के विचारों को और गांधी की सार्थकता को देखते हुए उस आधार पे गांधीवादी विचारधारा को अपना करके चल रहे हैं और देश में उस तरह के वातावरण और उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये जो दुकानदारी गांधी की चल गई है, दुकानें खुल गई है गांधी के नाम पे, और हमें नहीं लगता कि कहीं गांधी कहीं पे भी गांधी को लोगों ने अपनाया है। जो गांधी के मूल्य हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी जो बातें हैं, उनको अपनाया नहीं गया है। सिर्फ हमने उनके नामों पे एक ठेका और एक दुकान खोल दिया और उस दुकान को चला रहे हैं।
ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत तटस्थता के साथ काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं जो कि आज भी अभी बता रहे हैं, जैसे हरिजन सेवक संघ में है, वो भी महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और उन्हीं लोगों के विचारों को लेकर के आगे निकल रहा है। और उन्होंने काफी, जब से ये वहां पे रहे हैं, इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, कई तरह के विचार को आगे के लिए बढ़ाया। खुद भी अपने ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें की है। तो हमें इस पर डिटेल में समझने की जरूरत है। और अभी आगे हम सुनेंगे, और भी लोग आज बात करेंगे। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, बोलने के लिए तो बहुत है, इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। और हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी तो हिंद स्वराज भी पढ़ते हैं, गांधी को भी पढ़ते हैं, हम पढ़ाते भी हैं, रीडिंग गांधी भी है। तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, वो हम बच्चों को क्लास में बताते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पे तो वो आज समय नहीं है ना, इसका हमारे पास है ना आपके पास है। तो हम आगे भी इस तरह की बातें करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को सबको बहुत बधाई देता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए, और अपने प्रिंसिपल साहब को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज हम लोग को अपनी बातों से अवगत कराया। और सारे शिक्षक साथी और हमारे जो बच्चे हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद। प्रशांत सर, थोड़े देर हाँ। आधे घंटे जरूर रुकिएगा, एक नया कन्वर्सेशन देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, बच्चों का बिल्कुल, बिल्कुल। कन्वर्सेशन। सर प्लीज सर बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। रुकिएगा सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल। प्रिंसिपल सर कुछ बोल रहे हैं सर। कुछ लोग गांधी के विचारों को लागू करने का हिस्सा रूप से लड़ते भी हैं। यस सर। सही प्रशांत है। सर अपने को म्यूट कर लीजिएगा सर, क्योंकि वो ये हाँ यस सर। Thank you so much, sir, for your words. Now, I would like to call Ayush Raj, who is the student of BA program, second year, for giving a brief introduction about Hind Swaraj. Thank you, Amit. Hind Swaraj. Whenever we hear these words, an image of Mahatma Gandhi appears before our eyes. This is a book written by him. In this book, he has excellently penned down his ideas on various topics concerning India. He wrote this book in 1909 during his return voyage from London to South Africa. He wrote this book in his native language, Gujarati. It was later translated into different languages. The writing style of this book is that of a conversation between the editor and the reader, where Mahatma Gandhi, as the editor, answers the questions of the reader. This book was written as his answer to the Indian School of Violence and its South African prototype. The Satyagraha which he practiced in South Africa was still new, hardly 2 years old, but had developed sufficiently for him to write about it with some degree of confidence. Gandhiji felt that this book should be put in the hands of every child as it teaches the gospel of love in place of that of hate. It replaces violence with self-sacrifice. It pits soul force against brute force. In the book, Mahatma Gandhi defines the meaning of Swaraj, which means self-governance or self-rule. For him, Swaraj also meant to take control of our minds, thus freeing ourselves from worldly desires. The book also deals with topics ranging from the Congress, the partition of Bengal, to the condition of India and how can India get freedom. One question that may come in your minds is, why are we directly reading chapters from the book Hind Swaraj and not discussing the ideas mentioned by Gandhiji in the book? Well, the answer to that question is, we were asked by our history sir, Dr. Manish Karamwar, in our class as to how many of us have actually read the book completely, and none of the hands went up. That is why this session of reading chapters from this book has been organized so that it ignites a curiosity in our minds, and hopefully all of us will go through the book in the future. It is very important to go back to the roots of Gandhiji in order to enlighten ourselves. I hope all of us present here will have a good time listening to what the father of a nation had to say about our nation. Thank you. Thank you, Ayush, for giving us informative words. Now, here the times to welcome today's speaker, who are going to recite some of the chapters of Hind Swaraj. So, here the first, I would like to welcome Mr. Shubham Tibari, who is from BA program, 5th semester, English plus History, is going to read as a reader, and Ms. Preeti Rai, who is from BA program, 5th semester, Hindi plus History, as an editor. They are going to read the chapter of Hind Swaraj, What is Swaraj? Thank you, Mr. Amit. Mr. Gandhi,
Now I have learned what the Congress has done to make India one nation, how the partition has caused an awakening, and how the discontent and unrest have spread through the land. But Mr. Gandhi, now I would like to know your views on Swaraj, and I fear that your interpretation is not the same as yours. Yes, Mr. Reader. It is quite possible that we do not attach the same meaning to the term. You and I, and all Indians, are impatient to obtain Swaraj. But we are certainly not decided as to what it is. To drive the English out of India is a thought here from many mouths. But it does not seem that many have properly considered why should be so. I must ask you a question, Mr. Reader. Do not think that it is necessary to drive away the English if we get all we want. But I should ask of them only one thing, that is, please, please leave our country. If after they have complied with this request that their withdrawal from India means that they are still in India, I should have objection over this. Then we would understand that in their language, the word gone is equivalent to remain. Yes, editor. Okay, okay. Well then, let us suppose that the English have retired. What will you do then? Well, that question cannot be answered at this stage. The state after withdrawal will depend largely upon the manner of it. If you assume they retire, it seems me personally we shall still keep their constitution and shall carry on the government. If they simply retire for the asking we should have any army, etc. ready at hand, in this case also, we should have no difficulty in carrying on the government. You may think, Mr. Reader, I do not, but I will not discuss the matter just now. I have to answer your question, and that I can do well by asking you several questions. Why do you want to drive away the English, Mr. Reader? Well, because India has become impoverished by the government. They take away our money from year to year. The most important posts are reserved for themselves only. We are kept in a state of slavery. They behave insolently towards us and disregard our feelings. Yes, Mr. Reader. If they do not take our money away, become gentle, and give us responsible posts, would you still consider their presence to be harmful? Well, that question is useless. It is similar to the question whether there is any harm in associating with a tiger if he changes his nature. Such a question, such a question is a waste of time. When a tiger changes his nature, Englishmen will change theirs. This is not possible, and to believe it to be the possible contrary to human experience. Supposing, Mr. Reader, we get self government similar to what the Canadians and the South Africans have. Will it be good enough? Well, that question is also useless. We may get it when we have the same powers. We shall then hoist our own flag as Japan. So must India be. We must own our navy, our army. We must have our own splendor, and then will only India's voice ring through the world. You have drawn the picture well, Mr. Reader. In effect, it means this that we want English rule without the Englishman. You want the tiger's nature, but not the tiger. That is to say, you would make India English, and when it becomes English, it will be called not Hindustan, but Englistan. This is not the Swaraj that I want. Mr. Gandhi, I have placed before you my idea of Swaraj as I think, and it should be. If the education we have received be of any use, if the words of Spencer, Mill, and others be of any importance, and if the English Parliament be the mother of parliaments, I certainly think that we should copy the English people, and this to such an extent, just as they do not allow others to obtain a footing in their country. So we should also not allow them or others to obtain in ours. What they have done in their own country has not been done in any other country of the world. It is therefore, it is therefore proper for us to import their institutions. But Mr. Gandhi, now I would like to know your views on this. There is no need for patience, Mr. Reader. My views will develop of themselves in the course of this discourse. It is as difficult for me to understand the true nature of Swaraj as it seems to you to be easy. I shall therefore, for the time being, content myself with endeavoring to show that what you call Swaraj is not truly Swaraj. Thank you so much.
Thank you, reader and editor, for your encouraging words. Next, I would like to welcome our second pair, Mr. Ajay Gupta, who is from BA program 5th semester, History plus Political Science, is going to read as a reader, and Mr. Saurabh Singh, who is from BA program 5th semester, History plus Political Science, as an editor. This pair is going to read about the chapter Condition of India. Thank you, Mr. Amit. I now understand why the English hold India. But I should like to know your views, Mr. Gandhi, about the condition of our country. What about that? It is a sad condition, Mr. Reader. In thinking of it, my eyes water and my throat gets parched. I have grave doubts whether I shall be able sufficiently to explain what is in my heart. It is my deliberate opinion that India is being ground down, not under the English heel, but under that of the modern civilization. It is groaning under the monstrous, terrible weight. There is yet time to escape it, but every day makes it more and more difficult. Religion is dear to me, and my first complaint is that India is becoming irreligious. Here I'm not thinking of the Hindu or the Mohammedan or the Zoroastrian religion, but of that religion which underlies all the religion. We are turning away from God. You have explained it very easily, but how is it so? What about that? I really want to know that. There's charge laid against us that we are lazy people. What a joke, right? And that Europeans are industrious and enterprising. We Indians have actually accepted the charge, and we Indians therefore wish to change our condition. Hinduism, Islam, Zoroastrianism, Christianity, and all other religions teach us that we should remain passive about the worldly pursuits and active about godly pursuits, that we should set a limit to our worldly ambition, and that our religious ambition should be illimitable. Our activity should be directed into the latter channel. You seem to be encouraging religious talentism. You get that? Many a cheat has, by talking in a similar way that you are talking, and they had led the people astray. Isn't it, huh? Mr. Reader, you're bringing an unlawful charge against religion. Humbug there undoubtedly is about all religions. Where there is light, there is also shadow, isn't it? And I'm prepared to maintain that the humbugs in worldly matters are far worse than the humbugs in religion. The humbug of civilization that I'm endeavoring to show to you is not to be found in religion. But I really want to know, I think you are with Beak in history, huh? How can you say that, by the way, in the name of religion, Hindus and Mohammedans fought against one another for the same cause? Christian fought Christians. Thousands of innocent men have been murdered. Thousands have been burned and tortured in its name. Surely, this is a much worse than any civilization that we are the part of. I certainly submit that the above hardships are far more bearable than those of civilization. Everybody understands that the cruelties you have named are not part of religion, although they have been practiced in its name. Therefore, there is no aftermath to these cruelties. They will always happen so long as there are to be found ignorant and credulous people. But there is no end to the victims destroyed in the fire of civilization. Its deadly effect is that people come under its scorching flames, believing it to be all good. They become utterly irreligious and in reality, derive very little advantage from the world. Civilization is like a mouse, gnawing while it is soothing us. When its full effect is realized, Mr. Reader, we shall see that the religious superstition is harmless. It is harmless compared to that of the modern civilization. I'm not pleading for a continuance of religious superstition. No, not at all. We shall certainly fight them tooth and nail, but we can never do so by disregarding the religion. We can only do so by appreciating and conserving the latter. Well, then in the same manner, you will contend that Pax Britannica is a useless encumbrance, isn't it? Mr. Reader, you may see peace if you like. I see none. You are doing nothing but making a light out of the terror. The thugs, Pindaris and Wills, they were to the country. I don't believe it. Mr. Reader, if you actually give the matter some proper thought, you will see that the terror was by no means such a mighty thing. Don't you think if it had been a very substantial thing, the other people would have died way before the English advent? Moreover,
The present peace is only nominal, for by it we have become very emasculated and cowardly. We are not to assume that the English have changed the nature of the Pindaris in the bills. Certainly it is not possible. It is therefore better to suffer the Pindari peril than that someone else should protect us from it and thus render us effeminate. I should prefer to be killed by the arrow of a bill than to seek an unmanly protection. India, without such protection, was an India full of valor, courage and valor. Mr. Macaulay, yes, you're right. The Mr. famous Macaulay betrayed the gross ignorance when he labeled Indians as being practically cowards. They never merited the charge. Cowards living in a country inhabited by hardy mountaineers and infested by wolves and tigers must surely find an early grave. Have you ever visited our fields? Have you? I assure you that our agriculturists sleep fearlessly on their farms even today. But the English and you and I would hesitate to sleep where they sleep. Strength lies in the absence of fear, doesn't it, Mr. Reader? Not in the quantity of flesh and muscle that we have on our bodies. Moreover, I must remind you, you who desire home rule, that after all, the Bhils, the Pindaris, and the thugs are our own countrymen. To conquer them is your and my work. So as long as we fear our own brethren, we are unfit to reach the goal of Swaraj. थैंक यू रीडर एंड एडिटर फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड्स। अब मैं आपके सामने मिस अंजलि कनौजिया, जो कि बीए ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी की छात्रा हैं और जो आज पाठक के रूप में पाठ करेंगी। मिस्टर विशेष कासमी, जो कि बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी प्लस हिस्ट्री के छात्र हैं और आज एक संपादक के रूप में हिंद स्वराज का पाठ करेंगे और उनका पाठ शिक्षा पर है। मिस अंजलि। महात्मा जी, आपने इतना सारा कहा, परंतु उसमें कहीं भी शिक्षा की जरूरत तो बताई ही नहीं। हम शिक्षा की कमी की हमेशा शिकायत करते रहते हैं। आवश्यकता तालीम देने का आंदोलन हमारे सारे देश में देखते हैं। महाराज गायकवाड़ ने अपने राज्य में लाजमी शिक्षा शुरू की है, उसकी ओर हम सभी का ध्यान गया है। इस पुनीत कार्य के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। पर आपका क्या मानना है, यह सारी कोशिश क्या बेकार ही समझनी चाहिए? आपका क्या राय है, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, अगर हम अपनी सभ्यता को सबसे अच्छी मानते हैं, तब तो मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि वह कोशिश ज्यादातर बेकार ही है। महाराजा साहब और हमारे दूसरे बहुत बड़े नेता सबको तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका उद्देश्य पवित्र है, इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिए। लेकिन उनके उद्देश्य कार्यों का जो नतीजा आने की संभावना है, उसे हम छिपा नहीं सकते। शिक्षा का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही है, तो वह तो एक साधन जैसी हुई। एक औजार से चीड़ फाड़ करके बीमार को अच्छा भी किया जा सकता है और वही शस्त्र किसी की जान लेने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। अक्षर ज्ञान का भी ऐसा ही है। बहुत से लोग उसका बुरा उपयोग करते हैं, यह तो हम देखते ही हैं। उसका अच्छा उपयोग मुकाबले में कम ही लोग करते हैं। यह बात अगर ठीक है, तो इससे यह साबित होता है कि अक्षर ज्ञान से दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है। एक किसान जो ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है, उसे मामूली तौर पर दुनियादारी का ज्ञान है। अपने माँ बाप, अपनी स्त्री, बच्चे और जिस देहात में वह बसा हुआ है, वहां उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, इस सब का उसे काफी ज्ञान है। वह नीति के नियम को समझता है और उनका पालन करता है, लेकिन वह अपने दस्तखत नहीं कर सकता। इस आदमी को आप अक्षर ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में आप कौन सी बढ़ोतरी करेंगे? क्या उसकी झोपड़ी या उसकी हालत के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा कर देना चाहते हैं? पश्चिम के असर में आकर हमने यह बात चलाई कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम आगे पीछे की बात तो सोचते ही नहीं। अब उच्च शिक्षा को ही ले लीजिए। मैंने भूगोल विद्या,
खगोल विद्या, बीज गणित, रेखा गणित, भूगर्भ विद्या आदि का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला कर दिया? किस मकसद से मैंने वह ज्ञान प्राप्त किया? उससे मुझे क्या फायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान शिक्षा के बारे में ऐसा कहते हैं कि उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई हो कि वह उसके वश में रहता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है, जिसका मन प्रकृति के नियमों से भरा हुआ है और जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है और जो दूसरे को अपने जैसा मानता है। ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के मुताबिक चलता है। अगर यही सच्ची शिक्षा हो तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि भूगोल, खगोल आदि जो शास्त्र मैंने गिनाए हैं, उनका उपयोग मेरे शरीर या मेरी इंद्रियों को बस में करने के लिए मुझे नहीं करना पड़ता। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को लीजिए या उच्च शिक्षा को, उसका उपयोग मुख्य बात में नहीं है। उससे हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। तो महोदय, अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी। आप जो ये सारी बातें कह रहे हैं वह किसकी बदौलत कह रहे हैं? अगर आपने अक्षर ज्ञान और ऊंची शिक्षा नहीं पाई होती तो ये सब बातें आप मुझे कैसे समझा पाते हैं? मैं द्वंद में हूँ, कृपया स्पष्ट करें। आपने अच्छी कही, लेकिन आपके सवाल का जवाब भी सीधा है। यदि मैंने उच्च शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं नहीं मानता कि मैं एक निकम्मा व्यक्ति होता। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं उपयोगी बनूं। ऐसा करने के लिए जो कुछ मैंने पढ़ा है उसे मैं काम में लाता हूं, और यदि उसका उत्तम उपयोग हो तो भी मैं अपने करोड़ों लोगों के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए ही कर सकता हूं। तो इससे भी मेरी बात का समर्थन हुआ। इसके सिवा आपने जो बात मुझे सुनाई उसमें आप गलती कर गई, क्योंकि मैंने अक्षर ज्ञान को हर हालत में बुरा नहीं कहा है। मैंने तो इतना ही कहा है कि उस ज्ञान की हमें मूर्ति की तरह पूजा नहीं करनी चाहिए। वह अपनी जगह पर शोभा दे सकता है, और वह जगह यह है कि जब मैंने और आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जब हमने नीति की नींव मजबूत कर ली हो, तब अगर हमें अक्षर ज्ञान पाने की इच्छा हो तो उसे पाकर हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वह शिक्षा आभूषण के रूप में अच्छी लगती है, लेकिन अक्षर ज्ञान का अगर आभूषण के तौर पर ही उपयोग हो तो ऐसी शिक्षा आवश्यक करने की हमें क्या जरूरत है? हमारे पुराने स्कूल ही काफी हैं। वहां नीति को पहला स्थान दिया जाता है। वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है। उस पर हम जो इमारत खड़ी करेंगे वह टिक सकेगी। तब महात्मा जी, मेरा क्या यह समझना ठीक है कि आप स्वराज्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं मानते? मेरा जवाब हाँ और नहीं दोनों है। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकॉले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से इस योजना को बनाया था, ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता, लेकिन उसका काम का नतीजा तो यही निकला। यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज की बात भी पराई भाषा में कर रहे हैं। वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा सा परगना है। उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है। वेल्स के बच्चे वेल्स भाषा में ही बोलें, ऐसी कोशिश वहां चल रही है, और इसमें इंग्लैंड के लॉर्ड जॉर्ज बड़ा हिस्सा लेते हैं। और हमारी दशा कैसी है? हमें हमारे अच्छे से अच्छे विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेजी। हमारी कांग्रेस का कारोबार भी अंग्रेजी में चलता है। अगर ऐसा लंबे अरसे तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ियां हमारा तिरस्कार करेंगी और उसका शाप हमारी आत्मा को लगेगा। आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से ढोंग, राग, द्वेष, जुल्म आदि बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में जरा भी संकोच नहीं रखा है। यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने ही देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहिए? बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा में बोल नहीं सकता,
दूसरे आदमी को मेरे लिए अनुवाद कर देना चाहिए? यह कुछ कम ढोंग है? यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? इसमें मैं अंग्रेजों का दोष निकालूं या अपना? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी सीखने वाले लोग ही हैं। लेकिन मैंने आपसे अभी कहा कि मेरा जवाब हाँ और ना दोनों है। हाँ कैसे, सो तो मैंने आपको समझा दिया। अब ना कैसे यह बताता हूं। हम एक ऐसी सभ्यता के रोग में फंस गए हैं कि अंग्रेजी शिक्षा बिल्कुल लिए बिना अपना काम चला सके, ऐसा अब समय नहीं रह गया है। जिसने वह शिक्षा पाई है वह उसका अच्छा उपयोग करे। अंग्रेजों के साथ के व्यवहार में, ऐसे हिंदुस्तानियों के साथ के व्यवहार में जिनकी भाषा हम समझ न सकते हों, और अंग्रेज खुद अपनी सभ्यता से कैसे परेशान हो गए हैं, यह जानने के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाए। जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं उनकी संतानों को पहले तो नीति सिखानी चाहिए, उनकी मातृभाषा सिखानी चाहिए और हिंदुस्तान की एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। बच्चे जब समझदारी की उम्र में हो जाएं तो भले ही वे अंग्रेजी शिक्षा पाएं, और वह भी उसे मिटाने के इरादे से, न कि उसके जरिए पैसे कमाने के इरादे से। ऐसा करते हुए भी हमें यह सोचना होगा कि अंग्रेजी में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, यह भी हमें सोचना होगा। थोड़ा विचार करने से ही हमारी समझ में आ जाएगा कि अगर अंग्रेजी डिग्री लेना हम बंद कर दें तो अंग्रेज हाकिम चौंकेंगे। तब महात्मा जी, आपके अनुसार कैसे शिक्षा दी जाए? मैं आपकी मत जानना चाहती हूँ। उसका जवाब पहले ही मैं कुछ हद तक दे चुका हूँ, फिर भी सवाल पर हम और विचार करें। मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल और शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं, उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और फारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तरी और पश्चिमी हिंदुस्तान के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लोगों को जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी ही हो। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों के संबंध ठीक रहें, इसलिए बहुत से हिंदुस्तानियों का इन दोनों लिपियों को जान लेना जरूरी है। ऐसा होने से हम आपस में व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे। और यह सब किसके लिए जरूरी है? हम जो गुलाम बन गए हैं उनके लिए। हमारी गुलामी की वजह देश की प्रजा गुलाम बन गई है। अगर हम गुलामी से छूट जाएं तो प्रजा भी छूट जाएगी। आपने जो धर्म की शिक्षा की बात कही वो बड़ा ही कठिन है। फिर भी मुझे लगता है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हिंदुस्तान कभी नास्तिक नहीं होगा। हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक फल फूल नहीं सकते। बेशक यह काम मुश्किल है। धर्म की शिक्षा का ख्याल आते ही सिर चकराने लगता है। धर्म के आचार्य ढोंगी और स्वार्थी मालूम होते हैं, लेकिन उनमें अगर सद्बुद्धि पैदा न हो तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हम में जो कार्य करने की जो जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग करके हम लोगों को नीति की शिक्षा दे सकते हैं। यह कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हिंदुस्तानी सागर के किनारों पर ही मैल जमा है। उस मैल में जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ होना है। हम लोग ऐसे ही हैं और खुद ही बहुत कुछ साफ हो सकते हैं। मेरा यह टीका करोड़ों लोगों के बारे में नहीं है। हिंदुस्तान को असली रास्ते पर लाने के लिए हमें ही असली रास्ते पर आना होगा। बाकी करोड़ों लोग तो असली रास्ते पर ही हैं। उसमें सुधार बिगाड़, उन्नति अवनति समय के अनुसार होती ही रहेंगी। पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद पाठक और संपादक, आपकी प्रस्तुति वाकई काफी सराहनीय है। Now I would like to call Mr. Rajiv, who is the student of BA program second year, for concluding the reading portion. Thank you, Amit. As our batchmate and our seniors shared many informative words on the book Hind Swaraj, I would like to add some more information
regarding the relevance of Hind Swaraj in today's world. As we know that Mahatma Gandhi's book Hind Swaraj teaches us many moral values to survive in today's world. In this book, Hind Swaraj, the essential portion is arguments contained in it so far. Mahatma Gandhi defined the root meaning of the word Swaraj, that is, apne uppar Raj. In other words, for Mahatma Gandhi, Swaraj stood for taking control of ourselves, fearing ourselves from the slavery to the mind and its desires. Gandhi's views, as expressed in the small booklet, have been ignored mostly, both by the rulers of independent India and by the youths of nation. In this book, in Swaraj, Gandhi defined about self-government or home rule as not just driving away British from India, replacing them by Indian administrators and establishing parliamentary form of government, but as control by citizens over their own, as self-restraint and self-rule. The book Hind Swaraj, probably known for its critique of modern civilization. In the book, Mahatma Gandhi makes a basic information that under the impact of the British rule in India, we have all inspired from the idea of Mahatma Gandhi, that is Gandhism. Gandhism is a body of idea that describes the inspiration, vision, and the life work of Mohandas Karamchand Gandhi. It is particularly associated with his contributions to the idea of non-violent and resistance. The pillar of Gandhism are the truth and the non-violence that each and every citizen should follow. I would like to conclude with wonderful quotes by Mahatma Gandhi is, happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Thank you. Thank you, Rajiv. We feel really privileged to have your supervision and backing with us for all the time possible, ma'am. Without you, this program would not be possible. So now I would like to call Mr. Amit Singh, who is the Nodal Officer of Azadi Ka Amrit Mahotsav and Program Officer of NSS, Unit of Shyamlal College. Sir, your words help us to understand a better idea about Hind Swaraj. अमित लगता है डॉक्टर अमित नहीं है यहाँ पे. Go ahead. Okay, sir. So now I would like to call Dr. Preeti ma'am. Preeti ma'am, please share some of your idea about Hind Swaraj. Yeah, thank you, Amit. Thank you, Manish, for giving me this opportunity to be with you, one after the other with GSTS also, and today's program. Otherwise, I would have landed up watching Gandhi movie either by Richard Attenborough or Making of Mahatma by Shyam Benegal, watching on TV like year after year. I've been doing it on the 2nd of October. Hind Swaraj or the Indian Home Rule, as few chapters which the students have read today. Actually, you all must have now been known that it comprises of 20 short chapters and it's written in a dialogic form, which is the conversation between the reader and editor, which you practiced just now. And this kind of a format was used by Gandhiji, has become very useful kind of format, which you could even practice it today. Hind Swaraj, it's an invaluable treatise for mankind. It's it deals systematically with Gandhi's ideas, which are even relevant today, or were relevant at that time 100+ years ago when this book was written. They are relevant today, and I think will continue to be relevant in all times to come. The basic question is of recognition and the application of those ideas and its relevance in the modern times. As Principal Sir said, during this span, that is 1909, when Hind Swaraj was written by Mahatma Gandhi, and beyond that, in this modern 21st century, during this span of a century, the social, political, economic landscape of India and also the world has undergone changes beyond recognition.
It is one thing to invoke Mahatma Gandhi's ideals as and when the occasion so demands, that is 2nd of October, we all. This is academically also Gandhi's ideas are of great intrinsic value because he talks of education also there. It is universally acknowledged that the role of Mahatma Gandhi and his treatise, Hind Swaraj or the Indian Home Rule in the struggle for India's independence was epoch-making in numerous ways. Gandhiji was not only a fighter for freedom, but also an astute dreamer, a keen-eyed visionary, and a meticulous analyst, which I think all these qualities, after reading Hind Swaraj, you'll agree with me. He was a socio-political, economic thinker and a revolutionary planner and a campaigner. I consider him as a globalized icon. Widely traveled and broadly exposed, Gandhi was a truly Asha, kindly mute yourself. Yes, ma'am. Please continue. Ma'am, continue, ma'am. Ma'am, please Sorry for- continue. Priti, ma'am, please continue, ma'am. You are unmuted, ma'am. okay. Yes, ma'am. Please. Why I consider him as a truly globalized icon is because I have read in one of the seminars in France, Gandhiji said, "My nationalism is intense internationalism, and there is no opposition between patriotism and internationalism." Gandhi's efforts were concerned with India, yet he was true internationalist. Undoubtedly, Gandhiji did not propound any theory of international relations, but his emphasis on peace, non-violence, non-aggression, mutual cooperation, peaceful coexistence, and prosperity of all, including the most disadvantaged ones, or what we call the inclusive development today, and which principles are also talked of. This is that he in world could sustain when it is violence free, and harmonious and prosperous world needed serious attention to non-violence. The India of his dreams, it reminds me that he considered writing in Hind Swaraj was that that India of his dreams, as I said, he was an avid dreamer, astute dreamer, was that India should be free from oppression, discrimination, exploitation, violence, untouchability, backwardness, and illiteracy. Gandhiji has very clearly stated in Hind Swaraj that the dream can be realized if everyone does his duty. I quote from Hind Swaraj, "You and I have nothing to do with others. Let each do his duty. If I do my duty, that is, serve myself," as one of the students read him. If I do my duty, that is, serve myself, I shall be able to serve others. So this is the eternal message from the Mahatma for the welfare of humanity, which I am so much convinced of. And what appealed me most while reading Hind Swaraj was he professed greatest good of the greatest number. With all these observations,
about Hind Swaraj and about Gandhiji's philosophy. I congratulate Manish for conducting such a good program, innovative, and the initiative taken by him. And also, dear students, those who performed, you read very well. 3 cheers for you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your words. Now, I would like to call upon Mr. Amit Singh, who is the nodal officer of Azadi Ka Amrit Mahotsav and program officer of NSS unit of Shyamlal College. Sir, your words help us to understand a better idea about Hind Swaraj. धन्यवाद अमित, मेरे इनाम राशि हैं। और इस जो हिंद स्वराज की हम बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये शताब्दी वर्ष है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी का या स्वाधीनता की यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस उत्सव धर्मिता में जी रहे हैं। मार्च 12-13 से ये जब से शुरुआत हुई है और अगले 15 अगस्त तक, तो हम एक स्वप्न, जो आज़ादी का जो स्वप्न था, आज़ादी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद आज़ादी के जो स्वप्न थे, अपनी गरीबी को दूर करने का, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का, न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न धरातलों पर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का जो स्वप्न था, जिसमें तकनीक भी शामिल, सब चीजें हैं। लेकिन गांधी जी जब लौट रहे थे, तो हमने देखा कि लंदन से अफ्रीका के बीच में जो संवाद के रूप में उन्होंने जो बातें लिखी, जिसको हिंद स्वराज के रूप में संकलित किया गया, उसमें उन्होंने मशीन पर भी बात की, सभ्यता पर भी बात की और बहुत सारे सब टाइटल्स देते हुए, विषय देते हुए उन्होंने बातें रखी। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम शाश्वत मूल्य के रूप में भी देख पाते हैं, मशीन की भी बात वो करते हैं। तो ये जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, वो ये नहीं कहता है कि आप विकसित मत होइए, आप विकसित होइए। आप, गांधी जी का भी तो विचार यही है, उसमें वो दया धर्म की भी बात करते हैं, दया धर्म को मूल है, तुलसीदास को कोट करते हैं। उन्होंने साहित्य को भी कहीं ना कहीं दृष्टांत में रखा, दर्शन को भी कहीं ना कहीं समावेशित किया। तो वो एक परिपक्व वैचारिकता और व्यावहारिक अनुभव जो उन्होंने पूरे भारत का भी बाद में आने पर, यहाँ 1915 में आने के बाद जो भ्रमण किया, पूरे भारत को देखा, गांव-गांव गए, तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक शंखनाद था आजाद होने का, जो स्वप्न था, और उस स्वप्न में भी अपने आप को सुधारने की, आत्मबल की वो बात करते हैं, अनीति और नीति की वो बात करते हैं, निरीश्वर और ईश्वर या कि अध्यात्म की तरफ वो बात करते हैं। वो सभ्यता से जोड़कर कहते हैं कि जो पश्चिम की सभ्यता है वो अनीति पर टिकी हुई है। अनीति का मतलब वो कई प्रकार से देखते हैं, वो चारित्रिक उत्थान और पतन के क्रम में भी उसको पाते हैं। आप बहुत शिष्ट हो गए हैं, हम शहरी हो गए, हम शिष्ट हो गए, हमारे पास द्रव्य की कोई कमी नहीं है, पैसे की, धन का कोई अभाव नहीं है, लेकिन उसके बाद यदि इंसानियत का कोई रिश्ता वहां पर नहीं पनप रहा है, तो उस रूप में वो उसको अनीति देख रहे हैं। और अनीति के रूप में वो कहते हैं कि वहां निरीश्वरता है, ईश्वर नहीं है। अब ईश्वर की अपनी संकल्पना उनके मन में है, अपनी अपनी धारणाएं हैं। जैसे वो भजन गाते ही हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो गांधी जयंती पिछले कुछ वर्षों से कॉलेज में हम मनाते रहे हैं और आज अच्छा लग रहा है। मनीष जी ने, इतिहास विभाग ने इस क्रम में एक कदम आगे बढ़ाकर इस को सेलिब्रेट किया है। तो हम सब तेरी राह देखते बापू तेरे देश में। क्यों देखते हैं हम राह बापू की? बापू, देखिए, कुछ चरित्र जो हैं वो टाइप्ड कैरेक्टर बन जाते हैं, जिसको वर्ग चरित्र कहा जाता है। तो जो महात्मा हैं वो एक ऐसा चरित्र हैं जो समावेशित चरित्र हो गया है जन जन में। राष्ट्रपिता के तो हम कहते ही हैं, लेकिन क्यों कहा गया, किसने कहा, वो तो इतिहास की बातें हैं। इतिहास उसको दोहराता है, इतिहास उसकी गणना करता है, इतिहास का मूल्यांकन होता है और उस मूल्यांकन से आगे के सूत्र निकलते हैं। और हमारा जो छात्र समूह है, और हम भी विद्यार्थी की श्रेणी में ही हैं, जब हम अध्यवसायी हैं तो हम भी विद्यार्थी की श्रेणी में हैं। और इस विद्यार्थी की श्रेणी में जिस प्रकार खुद महात्मा ने जो संवाद रचा, हम उस संवाद के माध्यम से, यही एक डायलॉग है आज के कार्यक्रम का,
और ये इतना रचनात्मक डायलॉग है कि हम देख पाते हैं कि जो सहजता है जीवन की, जो सहजता है, हम विकसित होने के साथ साथ जितने सहज होंगे उतना ही हम उत्तरजीवी होंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात आ जाती है, उत्तराधुनिकता की बात आ जाती है, उपभोग की बात आती है, लेकिन क्या सभ्यता के मायने यही हैं? क्या सांस्कृतिक अवमूल्यन कहीं कोई चिंता की वजह नहीं है? ये सारे सवाल महात्मा गांधी के चिंतन की मूल धुरी बनते हैं, और ये उनके चिंतन की मूल धुरी बनते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम महात्मा की रीडिंग करते हैं या गांधी रीडिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि ये वो रीडिंग है, ये वो अध्ययन है जो हमारे लिए पहले भी आवश्यक था, आज भी आवश्यक है और शायद सदियों तक आवश्यक रहेगा। जितने दिनों दिन हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे और उतनी ही प्रकार की चुनौतियां हमारे समक्ष खड़ी होंगी। जब जब वो चुनौतियां खड़ी होंगी तब तब हमें गांधी की रीडिंग का महत्व समझ में आएगा और उसको हमें अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने की आवश्यकता होगी। इस व्यावहारिकता में उतारने के क्रम में आज का जो वैचारिक और संवाद जो हमारे साथ आपका छात्रों का हुआ है, हमारे सारे फैकल्टी मेंबर, अभी मैं देख रहा था प्रीति जी बोल रही थी, प्रीति मैम, तो उससे पहले प्राचार्य प्रशांत जी और मनीष जी एक साथ जुटे रहते हैं ऊर्जात्मक, बिल्कुल ऊर्जस्वी स्वर में। तो मैं काफी प्रेरित भी महसूस करता हूँ मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखने के लिए और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। अभी ये संवाद यहीं समाप्त नहीं होगा, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, एक विराम आएगा, लेकिन यह संवाद हमारा निरंतर बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको, बच्चों को बहुत स्नेह और सभी वरिष्ठ शिक्षकों को और मनीष जी को नमस्कार। अमित एक मिनट, यहाँ पे डॉक्टर डीएन सर हैं, हमारे सीनियर टीचर हैं। डीएन सर कुछ बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, अब आपने कहा तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन अब मुझे तो ध्यान में आया कि हिंद स्वराज जैसे कहते हैं कि एक छोटी सी बुक, छोटी सी बात, मतलब छोटी सी बात तो नहीं कहेंगे, मतलब एक उसको अगर देखा जाए तो जैसे कहते हैं गीता और कुरान की तरह उसको इस्तेमाल करना होगा। और जो उन्होंने कहा, गांधी ने एक मंत्र फूंक दिया। हम डिटेल में कुछ नहीं, क्या हिंद का मतलब क्या है, स्वराज का मतलब क्या है, सभी जानते हैं, बहुत कुछ बातें हुई। मैं इसको जैसे महात्मा गांधी ने खुद ही कहा था कि भागवत गीता के बारे में उन्होंने कहा, तो उनकी भी वाणी जो इसमें है वो भी, उनका भी एक गुरु मंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों के व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहिए। गांधी का एक मंत्र है। अच्छा, जैसे मैंने एक उदाहरण, मैं जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सत्याग्रह शुरू हुआ तो पहला एक्सपेरिमेंट में गांधी को जब शुरू किया, तो चौरी चौरा में घटना घट गई थी। तो चौरी चौरा में जो घटना घटी, थाने में आग लगा दिया। लोगों ने तो पूछा कि आपने एकाएक का सहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? तो महात्मा गांधी ने एक ही बड़ा दृढ़ विचार के थे, उन्होंने एक ही लाइन में बोला, नहीं, उनसे पूछा गया कि आप इतना उबाल पर, बॉइलिंग पॉइंट पर देश का जो है ना ज्वार, मतलब इतना जो है भावनाएं हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, आपने ये आंदोलन को वापस लेकर बहुत लोगों ने आलोचना किया, कांग्रेस में बिखराव की स्थिति पैदा हुई। तो गांधी ने एक शब्द बोला था कि लोगों ने सत्य और अहिंसा के जो मर्म को समझा नहीं है, यानी कि उस मंत्र को नहीं समझ पाए। तो कहने का मतलब कि उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, इतना बड़ा, और उनकी आलोचना हुई। गांधी की पहली बार बहुत भयंकर आलोचना हुई, सुभाष चंद्र बोस ने और मोतीलाल नेहरू, सबने एकदम ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। लेकिन महात्मा गांधी के जो दृढ़ विचार थे, तो ऐसे महात्मा तभी होते हैं जब उनके कुछ छोटी छोटी बातें ऐसे लगती है कि छोटे छोटे शब्दों में है। तो हिंद स्वराज मूल मंत्र है, एक तरह से मंत्र है, उस ढंग से हमको गीता और कुरान की तरह उसको इस्तेमाल करना होगा अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, एक मंत्र की तरह, बस। और बाकी तो बहुत कुछ कहा गया है। और मनीष बच्चों के लिए सर, बच्चों के लिए अच्छा, बच्चों के लिए तो अब बच्चों के लिए क्या कीजिए कि जैसे आप पहले भी करते रहे हैं कि हम लोग उनको एनर्जी दे दीजिए, एनर्जी दे देंगे कि हिंद स्वराज को जो है ना, वो सबको एक एक बुक दिया जाए हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से,
जब पढ़ना, अगर मंत्र हमने मंत्र भी कह दिया और नहीं भी देंगे तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक प्रति उनको दिया जाए, और भी जो और लोगों को प्रेरित करें, और ताकि बच्चे पढ़ के उसको अपने जीवन में शिक्षा के संबंधी बहुत कुछ सुना आपने, बहुत कुछ एक नए संवाद के रूप में इनको मनीष जी ने बनाया है, आपको ड्रामेटिक वे में नए तरीके से उसको पेश किया, तो उसको अपने जीवन में पेश करने की कोशिश करेंगे बच्चे, और व्यवहारिक जीवन में अगर ये करेंगे तो उनके मर्म को समझेंगे तो आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, और भविष्य देश का उज्जवल होगा। ओके, थैंक यू सबको, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspiring words. So it's time to bind up our program. So I'd like to call Mr. Ashish Raj, who is the student of BA program, second year, for delivering a vote of thanks. थैंक यू अमित। महात्मा गांधी कहा करते थे, कुछ ऐसे जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, कुछ ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। I hope you must have learned something fruitful through this session. First of all, I wish you all happy Gandhi Jayanti. I, Ashish Raj, got the great opportunity to deliver vote of thanks. You may have seen the hard work done by the History Society. This department has achieved new heights under Dr. D.N. Singh, Dr. Pramod Kumar, Dr. Manish Karamwar, Dr. Seema Meena, and Mr. Ajay Kumar. First of all, I would like to thank our guest of honor, Dr. Ramesh Kumar, Principal of Shyamlal College Evening. I would also like to thank the teacher, Preeti Shukla ma'am, Kumar Prasad sir, Amit sir, Ila Bhusan ma'am, and Anil sir, and all the teachers who joined us today and graced us with their presence in the program. I wholeheartedly thank all the SACS, GSTS, JCC, and IQAC member who always backed us and helped us to make the event successful. I thank all the seniors who are present here and all the students for joining us today. Thank you so much for being with us. I congratulate and thank to all the speakers, Mr. Shubham Tiwari, Ms. Preeti, Ms. Anjali Kanojia, Mr. Vishesh Kasmi, Mr. Ajay Gupta, and Mr. Saurabh Singh for such an informative talk today. Thank you once again for your cooperation and support. Thank you. Thank you all. Kindly open your camera so Mr. Joshi has clicked one photo. And thank you very much. And it's time for leave. Thank you very much. सर कल प्रोग्राम है ना? हमने भी कैमरा क्या करना है? हाँ। बस ठीक है सर, कैमरा ऑन और कुछ नहीं करना है सर। ठीक। So organizers, kindly take a picture. Okay, so चलिए मैं ही ले लेता हूँ। Done. So thank you very much all. So जल्दी मिलते हैं। Thank you very much for successful program. Thank you. So it's time to leave. Thank you, sir. Thank you. Thank you all the teachers. बाय बाय करें। Thank you sir. Thank you. मनीष जी बैठा हो? Yes sir. हाँ yes sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you all. Anil sir, thank you. Thank you for joining all reader organizers and it's a really fantastic. कल Monday इसको क्लास में डिस्कस करेंगे तो और वीडियो में भेज दूंगा तो आप लोगों को डिस्कस करना होगा. Okay. Thank you और thank you sir.